is the list of map, and from your history we will be having nationalism in India, and according to your syllabus of the current syllabus, you will be having either locating or identify. आपके पहले तो चार थे, and I'm going to do the 4 Congress sessions, even though it is not there, but I'll do it. And second is the important centers of national movement, that is Champaran, Kheda, Ahmedabad or Satyagrah, Amritsar, Chauri Chaura and Dandi. And we need to do all these. You need to always keep this map with you, and whenever you are going to have your exams class 10, you need to use this map. Let us now start. Now, first of all of you, I request each one of you to be very, very, very alert. अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. Just see on your screen what is there. When I give you time, at that moment you all can write down. If you look on your screen, we always know that this is आपका Jammu Kashmir area. Then हमें यहाँ से नीचे उतरना है. Always keep in mind, because this will help you in your geography also. This will be HP, this will be Punjab. Then this is Haryana. This small one is Delhi. ये छोटा सा दिल्ली है. This is Uttar Pradesh. Then this is Rajasthan. This is Gujarat. ये वाला नीचे आ रहा है, this is Maharashtra. This is, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है. Then this place, वेस्ट बंगाल. बस आपको इस वाल में, मतलब राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विथ व्हाट द मैप इज ऑफ हिस्ट्री. तो आपको कौन कौन सी जगहों को अच्छे से लर्न करना है, या फिर यू हैव टू कीप इन योर इज पंजाब, देन उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, these are the 1 2 3 4 5 6 states को तो you have to, आपको मतलब आप 10 बार, whenever you are practicing the map, the key to map is you practice it. Believe me, मैं जब छोटी थी ना, it's not like I am a teacher so I am telling you, no, not at all. Really हम लोग जो है कम से कम एक मैप को मिटा मिटा के हम करते थे. इनफैक्ट हमारे स्कूल के अंदर तो देयर वाज वन रूल कि हमें कलर भी करना होता था मैप में, and we had to paste it. So 100 times we would be, doing the same thing at our home, and then we would be doing it. Well, that's actually an interest. And in the school where I was teaching, you won't believe, a class 3rd student was asked to make the map, draw the map. In fact, बाद में हम teachers ने बोला कि the child is not a cartographer. And why this map बनाना यही था? This is because we would not be remembering the places. कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पंजाब यू मे गो फॉर, तो पंजाब एंड यूपी के बीच में आपका हरियाणा एंड दिल्ली आता है. पंजाब एंड यूपी के बीच में हरियाणा एंड दिल्ली आता है. तो यू शुड रिमेंबर कि दिस इज पंजाब, देन ये जो लार्ज है दिस इज यूपी. गुजरात इज ऑन द एक्सट्रीम वेस्टर्न बॉर्डर. दिस इज आपका वेस्ट बंगाल, एंड दिस एक्सट्रीम आपका ये है तमिलनाडु. So if you have remembered this,
देन हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है कि व्हाट आर द एरियाज दैट वी नीड टू लर्न इट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है विच मे बी टू मार्क का मतलब क्या है, आपको जगह ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट एंड यू हैव टू मार्क दैट प्लेस। ठीक है, तो आपके आएंगे INC के सेशंस। आपके जो है, I am going to do 4 sessions with you. Even though in your syllabus it is 3, but I am doing it 4. The INC sessions, the main sessions, मतलब जहां पर certain decisions were taken. तो पहला हमारा है we will be going in a chronology. Chronology का मतलब होता है हम डेट वाइज जा रहे हैं, राइट? तो the first is September 1920. The first is September 1920. What happened in September 1920? NCM was proposed. NCM and आपका खिलाफत मूवमेंट जो है that was proposed. NCM को खिलाफत के साथ जोड़ने का जो मूवमेंट था वो यहाँ प्रपोज हुआ। सेकेंड हमारा जो जाएगा वो जाएगा हमारा दिसंबर 1920। सितंबर 1920, दिसंबर 1920। और दिसंबर 1920 को हमारा क्या हुआ था? NCM खिलाफत was adopted. NCM खिलाफत was adopted. देन हमारा तीसरा जाता है जिसको हम कोई भी मतलब उस पर्टिकुलर सेशन में देयर वर मेनी मतलब बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। दैट वाज आल्सो फॉर द व्हाट यू कॉल एज, एक था आपका फर्स्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, देन सेकेंड आपका था रिगार्डिंग सर्टेन ये जो आपका साइमन कमीशन आया था उनका। तो इसको हम लोग 1927 सेशन बोलते हैं। ठीक है, 1927। एंड एज आई टोल्ड यू वन मोर इज देयर which was called as पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसको हम बोलते हैं दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 यानी कि हमारे पास हो गया सितंबर 20, दिसंबर 20, 27 session and 29 session. I have done it in a chronology, September, December, 27, 29. ठीक है, अब जो हमारा NCM प्रपोज हुआ था, प्रपोज का मतलब तो आप लोग ज्यादा जानते हो, यू नो यू आर ऑल सेलिब्रेटिंग द प्रपोजल एंड द ब्रेकिंग डे। मुझ जैसा इंसान को तो नहीं बोल सकते हो। प्रपोजल मीन्स NCM एंड खिलाफत को मिलाया गया था। गांधी जी ने कोशिश की थी ये दोनों मूवमेंट मिलकर स्वराज के लिए लड़े। सो द वेरी फर्स्ट वाज इन कैलकाटा। सॉरी, I'll change the color. Then the second one was in Nagpur. Third one was in Madras and fourth one was in Lahore. तो पहला हमारा था कैलकाटा, सेकंड हमारा था नागपुर, थर्ड हमारा था मद्रास एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका था लाहौर। 1920, 1920, 27 and 1929। तो ये हमारे 4 सेशन थे, राइट? नाउ लेट अस कम टू दिस सेशन। हम कैसे लगाएंगे?
ये आप लगाओगे 1, कोलकाता, दिस इज 1। और आप देखिए ये जो जगह छूटी है, दिस, ये आपका नहीं आएगा, उससे पहले आ जाएगा। सो यू हैव टू वेरी, मतलब आपको उसमें नहीं लगाना, इसमें लगाना, बहुत बहुत माइन्यूटली, ठीक है। फिर आई टोल्ड यू दैट महाराष्ट्र आप लोग याद करोगे, एंड दिस पोर्शन इज महाराष्ट्र। ये आपका जो है, दिस पोर्शन इज महाराष्ट्र, और ये आपका जो पोर्शन था, दिस इज आपका कोलकाता। नाउ इन दिस, आई होप इट इज विजिबल। ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा देख रहे हो आप लोग, दिस इज मुंबई, दिस इज मुंबई। और इसके एकदम सीध पर आप इस कोने में लगाओगे नागपुर। यू नो, हम लोग जब यहां से चेन्नई जाते थे ना, तो नागपुर हमारा 50% पॉइंट होता था। 50% पॉइंट का मतलब होता है कि आधा रास्ता, दैट इज, अगर हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं तो दैट मीन्स हमारा आधा रास्ता जो है वो आ गया है। नागपुर हमारा हाफ रास्ता होता था फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो ये आप कोने में देख रहे हैं, दिस इज आपका नागपुर। ये ऊपर जो है बच्चा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका नागपुर है। ये जो मैंने काला लगा रखा ना, इसके एकदम सीध में आपका जाएगा, ये नागपुर आपका आएगा। तो सेकंड, वेयर एनसीएम वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, अब हमारा जाता है थर्ड वन, मेड्रास। तो हमारा जो मेड्रास है, वैसे तो देखा जाए तो उस वक्त में वी डिड नॉट हैव एनीथिंग कॉल्ड तमिलनाडु, नहीं था, फिर भी हम इसी एरिया को, ये जो गोल लगा हुआ है, दिस इज मेड्रास सेशन, दिस इज मेड्रास सेशन। लेफ्ट साइड केरला, राइट साइड तमिलनाडु, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका, ये आपको पंजाब, मैंने आपको बताया, आई सेड दैट दिस इज पंजाब, ये हमारा पंजाब है, हरियाली वाला, ठीक है। पंजाब के बाहर आप कहीं पर आप लगा दो, अगर बाय चांस आ गया, बिकॉज इट वाज अर्लियर आपका जो है, इट वाज इन सिलेबस लाहौर। if it comes anywhere, you can put near Punjab. So these are the 4 Congress sessions. The very first is what we call as September 1920, where NCM was proposed along with Khilafat. The second one was where it was adopted, Nagpur. The third one is the Madras session, और ये मद्रास सेशन आपका सीधा मद्रास सेशन आता, कांग्रेस सेशन इन एट मद्रास करके आता, या कांग्रेस सेशन इन 1927 आता है, कांग्रेस सेशन इन 1927 आता है। एंड द फोर्थ वन इज द प्लेस वेयर जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम पूर्ण स्वराज। ये आपके 4 हैं। सो दीज आर द 4 प्लेसेस ऑफ सेशन। द प्लेस वेयर, सॉरी, द मद्रास सेशन या फिर कांग्रेस सेशन 1927। तो आपको ये डेट्स को थोड़ा सा लर्न कर। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, दीज आर द 4 कांग्रेस सेशंस। इनको हम बोल रहे हैं 4 कांग्रेस सेशंस। Right, this is the very first what we call as map. Now the second is आपके जो important areas है of national movement. Now हमारा जो second आने वाला है वो है important places
ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट में हमारे कितने मूवमेंट्स थे बच्चे? हमारे मूवमेंट्स थे, एक था सत्याग्रह, पहला मूवमेंट हमारा जो 3 जगह हुआ, ठीक है। देन सेकेंड हमारा था एनसी, मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। yes, NCM is the short form for non cooperation movement. फर्स्ट इज आपका सत्याग्रह, यानी कि उसके 3 जगह होंगे। देन आपका एनसीएम, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें से मैम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एनसीएम के अंदर क्या क्या आएंगे? एनसीएम के अंदर आपका सिर्फ 2 ही आएंगे। एंड देन थर्ड वन इज आपका सिविल डिसोबीडियंस, जहां से आपका स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस जहां से आपका स्टार्ट हुआ था। तो दीज आर कॉल्ड एज नेशनल मूवमेंट्स। प्लेसेस तो मैं आपको भी बता रही हूँ, दीज आर कॉल्ड एज अ नेशनल मूवमेंट। सत्याग्रह एक मूवमेंट था, एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक सेकेंड मूवमेंट था, एंड सिविल डिसोबीडियंस तीसरा आपका था। मतलब यू आर नॉट हैविंग द क्विट इंडिया मूवमेंट राइट नाउ, दैट वाज आल्सो देयर, बट दीज वर द ओनली 3 व्हिच वी हैव टू डू एज अ मैप, राइट। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सत्याग्रह। मैम नीचे खेड़ा है आपका, ये जो बेसा बना हुआ है, यहां से ये यहाँ आपका जो है दिस इज खेड़ा, एंड थोड़ा ऊपर आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले आता है, फिर खेड़ा आएगा, तो ये याद रखना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन गुजरात, बोथ ऑफ देम आर इन गुजरात। withdrawal of non-cooperation movement, the place where Gandhi ji abruptly withdrew NCM, the place where Gandhi ji abruptly withdrew NCM। ये आपका एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब मैंने आपको बताया था दैट दिस इज उत्तर प्रदेश, राइट, एंड इसके पास में जो है वो आपका है बिहार, राइट, एंड ये मैंने आपको बताया था पंजाब, दिस इज आपका पंजाब, ठीक है, और इसके बीच में आपका हरियाणा एंड दिल्ली है। तो ये आपका हमने चंपारण तो लगा दिया था, चंपारण आपका यहाँ लगा था, इसके साइड में ये वाली जो जगह है, नेपाल के थोड़ा नीचे, नेपाल के थोड़ा नीचे चंपारण आपका बिहार में लगेगा, एंड ये जो जगह है दिस इज आपका चौरी चौरा, दिस इज आपका चौरी चौरा, दिस इज द प्लेस वेयर NCM was withdrawn। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है
द मतलब कि द प्लेस वेयर ड्यू टू वायलेंस गांधी जी विड्रॉ एनसीएम, या फिर द प्लेस वेयर एनसीएम वाज विड्रॉन ड्यू टू अब्रप्ट वायलेंस। ऐसा कोई भी आपका आएगा, जो भी है एनसीएम का विड्रॉयल आएगा एंड दैट इज इन चौरी चौरा। और आपको लिखना है, आपको यूपी नहीं लिखना है, आपको चौरी चौरा लिखना है। द सेकेंड वन इज आपका द इनफेमस जालियानवाला बाग ट्रेजेडी। द इनफेमस जलियानवाला बाग ट्रेजेडी। अब मैंने आपको बताया था कि लाहौर आपका पंजाब के उस तरफ है, तो ये जो बॉर्डर आपका आएगा ये आपका है अमृतसर, ये आपका है अमृतसर। जैसे हमने जलियांवाला बाग में, तो अमृतसर लिखना है, यू हैव टू राइट अमृतसर because it was Amritsar where Jallianwala Bagh tragedy took place. And the last but not the least is इसके अलग अलग आते हैं आपके स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आ सकता है, या फिर द बिगिनिंग ऑफ सॉल्ट मार्च आ सकता है, मतलब जहां पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट मार्च, या फिर द प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस began। तो वो आपका है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज गुजरात। गुजरात में हम लोग पहले लगा चुके हैं डांडी, सॉरी पहले लगा चुके हैं खेड़ा एंड अहमदाबाद, तो अब हमने लगाना है डांडी। और खेड़ा के नीचे, अगर आपका खेड़ा है उसके नीचे आपका आ जाएगा डांडी। तो हम लोगों ने कौन कौन से एरियाज कर लिए? चौरी चौरा, अमृतसर एंड डांडी, ये हमारे 3 एरियाज हैं। दैट इज ऑफ, एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक आपका जलियांवाला बाग, एंड द थर्ड वन इज वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था। सो दीज आर द 3 एरियाज। Many times what happens is I get this problem because अभी तो आपको नहीं समझ आएगा. This is because right now we are only focusing on history, and when you will be having the maps of geography, you will be having a pretty number of maps. हमारे जो geography है उसके अंदर हमारा जो map है बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा. I'll tell you, I'm just opening it. You have the map from if you have the अगर आप लोग जो हो CBSE के साइट पर जाओगे तो you will find in geography the very first we have resources, second में आपके सारे dams हैं, that is we are having 8 dams. Then agriculture के अंदर आपके major areas of rice and wheat, then largest producers वो है आपका. Then minerals में आपके 5 तो iron ore है, then 4 आपके coal mines हैं, then आपके 6 आपके oil field हैं, then पावर प्लांट है आपके, पावर प्लांट है 3, न्यूक्लियर पावर प्लांट है 4. देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंदर यू आर हैविंग 8 टेक्नोलॉजी पार्क्स. देन यू हैव द पोर्ट्स जो आपके 12 पोर्ट्स हैं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके, यानी कि you will be having around 80 to 90 places to learn in geography. ठीक है ना? तो that means, मतलब इसका मतलब क्या है? I'm not scaring you. I'm telling you कि while you are preparing your history map, क्योंकि history should not be combined with others, तो आप लोग क्या करोगे? You will be taking separate map. And मैंने आपको 4 जगह बताई है. फर्स्ट इज पंजाब, आपको मैंने बताया है.
उत्तर प्रदेश आपको मैंने बताया है, मैंने जो जो जगह बताई है आपको, मतलब ऑन द नॉर्दर्न बेल्ट आपका पंजाब है आपका, ठीक है। सेकंड आपका जो है दिस आपका जो है पंजाब है, देन आपका ये उत्तर प्रदेश है, देन आपका ये बिहार है, दिस इज बिहार, देन दिस इज आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका पंजाब, दिस आपका महाराष्ट्र, दिस आपका गुजरात, दिस आपका वेस्ट बंगाल एंड इन मैप्स को आपने क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ मैप, यू विल प्रैक्टिस ओनली कि ये सब जगह कहाँ पर है। पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, छोटा सा दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार, ठीक है। फिर बिहार के बाद नीचे एक जगह छोड़कर राइट आपका आ गया, दैट इज आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक्सट्रीम आपका नीचे तमिलनाडु आप लोग कर लोगे, एंड गुजरात भी आप कर लोगे बिकॉज इट इज ऑन द एक्सट्रीम आपका इस तरफ वेस्ट की तरफ है, उसके नीचे तुरंत आपका महाराष्ट्र। दीज आर द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स वेयर ईदर द आपका जो है सेशंस हुए थे या फिर आपके मूवमेंट्स हुए थे। तो अब हम सबसे पहले सेशंस को अलग से करेंगे। अगर आप लोग इफ यू आर कंफ्यूजिंग विथ एवरीथिंग तो आपका गलत होगा। दिस इज अ ट्रिक। मैं तो जब हम लोग उसमें करेंगे ना ज्योग्राफी, तो मैं आपको बाकी ट्रिक्स भी दूंगी कि हम लोग उसको कैसे लर्न करते हैं। तो नाउ द ट्रिक इज हाउ टू लर्न इन द हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगे, ओके टुडे आई एम गोइंग टू ओनली रिवाइज द कांग्रेस सेशंस। तो 4 हमारे कांग्रेस सेशंस हैं, एक हमारा कलकत्ता था, सेकंड हमारा नागपुर था, थर्ड हमारा मद्रास था एंड चौथा हमारा लाहौर था। यू कैन मेक नेमोनिक्स, आप इनका कोई नाम रख के आप बना सकते हो। अगर नहीं है तो कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। व्हाट आर द, इसके क्या मतलब की हिंट है, कलकत्ता इज अ प्लेस वेयर आपका जो है एनसीएम खिलाफत वाज प्रपोज्ड, नागपुर इज अडॉप्टेड, मद्रास इज मद्रास सेशन, लाहौर पूर्ण स्वराज। अब ये चारों आपके हो गए अच्छे से। नाउ रिमूव देम, अब इनको रिमूव कर दो। कलकत्ता आपका कहाँ था, वेस्ट बंगाल, नागपुर आपका कहाँ था, महाराष्ट्र, देन आपका थर्ड कहाँ था, तमिलनाडु, दैट इज मद्रास, एंड फोर्थ कहाँ था, लाहौर। अब ये जो चारों सेशंस हैं, मतलब ये जो चारों एरियाज हैं, ये हमारे हट गए। नाउ दीज आर आपका जो है, सॉरी लाहौर इज देयर, ये हमारे हट गए। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट हमारा है सत्याग्रह मूवमेंट। हमारा सबसे पहला, हमेशा याद रखना 16, 17, 18, 16, 17, 18, 16, 17, 18। तो 16 हमारा था चंपारण, 17 हमारा था खेड़ा एंड थर्ड हमारा था अहमदाबाद, ठीक है। फर्स्ट हमारा चंपारण, सेकंड हमारा खेड़ा, अहमदाबाद, CKA, CKA, CKA। तो अब क्या होगा, हमारा चंपारण इज आपका बिहार, चंपारण आप कुछ भी याद कर लो, चंपाकली बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। अब हमारा जो है ये भी हट गया, यानी कि बिहार भी चला गया हमारा, गुजरात भी हमारा आउट, नहीं अभी हमारा गुजरात आउट नहीं हुआ, सॉरी गुजरात नहीं आउट हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है विड्रॉयल ऑफ एनसीएम, दैट इज आपका चौरी चौरा, चौरी चौरा। स्पेलिंग याद रखना, पिछली बार एक बच्चे के मार्क्स कट गए थे कि उसने स्पेलिंग गलत लिखा था, उसने चौरा चौरी लिखा था, चौरी चौरा, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना चोरी, वो छोरी छोरा, चोरी छोरा, तो ऐसे बना लेना। देन आपका सेकंड आपका है द प्लेस वेयर ये हुआ, देन सेकंड इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, अमृतसर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सॉल्ट मार्च, यानी कि आपका डांडी। अब चौरी चौरा अगेन, उत्तर प्रदेश, अमृतसर एंड डांडी मार्च। तो इस तरीके से इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल डेफिनेटली गेट, क्योंकि
earlier jo if we look into the blueprint of the older version, so definitely there used to be 5 marks ka if the map was there, so 2 marks was only for history and 3 was for geography. One was identification of the Congress session and the second one was marking any place. तो इसीलिए मैंने कांग्रेस सेशन को अलग से करवाया था, the 4 sessions. So please revise it in the same manner and at least your map will never be wrong. If the map is coming for 5 marks in your boards, and 5 marks should be there in your marks. You should score complete 5 marks for that. There should be no compromise कि मैम हमारा मैप, तो प्लीज पहले स्टेट्स को लर्न करना, उसके बाद आप इसको लर्न करना. पहले स्टेट्स को लर्न करना, जो मैंने 6 स्टेट्स आपको बता दिए हैं. पंजाब बताया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन आपका गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज तमिलनाडु. फिर जैसे मैंने आपको बताया 4 सेशंस को लर्न कर लीजिए, 4 सेशंस हट गए. फिर एनसीएम विड्रॉयल लर्न करिए, एनसीएम विड्रॉयल 1922. देन आपका अमृतसर जलियांवाला बाग, सॉल्ट मार्च आपका डांडी. In this manner, if you are learning history chapter, it will never be, and this can also come as a 1 marker or 2 marker question. Don't think कि अगर हमने इसको मैप में कर लिया है तो this is only going to be a map based question. So never. A map question can be a 2 marker question or 1 marker question, and a 1 marker question can also be a map question. So this will help you out to learn these places also. I have already shared everything on your WhatsApp, so you can go through each and every word.